Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The French Hub. In today's video we'll start with chapter number 7 of Mo Passport 4. ये हमारा चैप्टर है J'aime lire means I like to read. यहाँ पर हमारा एक there is a scenario created of a teacher and a student means class का scenario है जहाँ पर students are going to the library and they are publishing few books. ठीक है, so let's start by reading the chapter. So सबसे पहला हमारे पास dialogue है टीचर का. टीचर कहती है bonjour, vous aimez lire means hello, do you like to read? चिल्ड्रन जो होते हैं les étudiants मीन्स द स्टूडेंट्स, वी मीन्स येस. द टीचर अगेन कहती है, देन टीचर का डायलॉग आता है अगेन, वो voulez lire les contes et les fables मीन्स डू यू वांट टू रीड सम स्टोरीज, टेल्स एंड स्टोरीज. कॉन्ट का हमारा मीनिंग होता है टेल्स एंड फैबले मीन्स स्टोरीज. ठीक है, देन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं वी सो इंटरेस्टेंट, ओ एम बी मीन्स येस दे आर इंटरेस्टिंग, आई लाइक वी लाइक देम वेल. फिर जो मेरी टीचर होती है वो कहती है allons dans la bibliothèque मीन्स लेट्स गो टू दी लाइब्रेरी. देन इन द लाइब्रेरी का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएटेड है. इट सेज, टीचर कहती है commençons par découvrir Charles Perrault, un écrivain très connu. Let us begin by discovering Charles Perrault, a very famous writer. Il a écrit des contes pour enseigner aux jeunes enfants, means he has written these stories for teaching young children. Ces contes ont une morale, means his stories has a moral. Quelques contes très connus de Perrault sont Les Chabotés, means some of the most famous stories of Perrault are Chaboté, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge. तो ये हमारी कुछ बुक्स दे रखी हैं जो कि शार्ल पेरॉल्ट ने लिखी हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी क्या है, फेमस है. ठीक है, एटसेट्रा पीछे दे दिया. ये वाले बुक्स के नाम है, बीच में क्वेश्चन ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है, तो उनके बीच में हमारे बुक्स के नाम दे रखे हैं. राइट. फिर जो हमारी एलेना होती है वो कहती है जे ला बेल ओ बुआ डोरमो मीन्स आई हैव रेड द बेल ओ बुआ डोरमो. ये वाली स्टोरी मतलब कि मैंने रीड कर रखी है. फिर फिलिप कहता है जे déjà le barbe bleue, c'est très intéressant मीन्स आई हैव ऑलरेडी रेड barbe bleue जो उसकी बुक है शार्ल पेरॉल्ट की, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. फिर हमारे टीचर जो वो कहता है alors je vous propose de choisir un conte de Perrault means so I propose you to choose a story of Perrault. Cherchez le livre, empruntez de la bibliothécaire avec votre carte de lecteur et lisez chez vous. Means search the book, borrow from the bibliothécaire हमारा क्या होता है, इट इज़ लाइब्रेरियन. जो हमारा लाइब्रेरी में टीचर बैठी रहती है ना ऑन द मेन काउंटर, उसको हम बिब्लियोथेकर कहते हैं फ्रेंच के अंदर. सो यू बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरियन एंड विद योर carte de lecture means with your library card and read at your home. On va discuter dans le prochain cours means we are going to discuss on the same topic in the next class. फिर एकदम लुइस की एंट्री होती है, वो कहता है पुजोन से मदाम मीन्स कैन आई एंटर और मे आई कम इन मैम. फिर हमारे टीचर मिस्टर मोन्सियर का मतलब होता है सर. सो ल प्रोफेसर जो हमारा टीचर होता है, सर होता है, वो कहता है वी मे चू एन रिटार मीन्स येस बट यू आर लेट. लुइस कहता है वी मोन्सियर डिजोले मीन्स येस सर सॉरी. ल प्रोफेसर मीन्स सर जो हमारा होता है वो कहता है असिए तुआ मीन्स सिट डाउन. देन आफ्टर द क्लास, जब हमारी क्लास पूरी तरह पूरी फिनिश हो जाती है, फिर फिलिप कहता है किसकी ए अरीवे लुइस मीन्स व्हाट अराइव्ड, क्या आ गया था लुइस. pourquoi tu es en retard aujourd'hui मीन्स व्हाई आर यू लेट टुडे. लुइस कहता है je suis sorti de chez moi à bonne heure means I left from my home at correct time. Dès que je suis sorti, j'ai entendu des cris venant du café près de chez moi means as soon as. देख का हमारा मीनिंग क्या होता है, as soon as. यहाँ पर मेंशन है देखो, as soon as I left I heard some cries coming from the cafe near to me. Une grosse voiture noire est arrivée means a big black car arrived. Une femme est descendue et entrée dans le café means a lady descended from the car and entered in the cafe. Tout le monde l'a regardé et a commencé à crier et à applaudir means everybody looked and began to cry and applaud. J'ai reconnu la grande actrice Marion Cotillard means I met the
great actress Marion Cotillard. Elle est venue voir une amie means she came to see a friend. J'ai demandé son autographe means I demanded her autograph. Puis elle est montée dans sa voiture et elle est partie means then she mounted or she climbed up on her car. अपनी गाड़ी में चढ़ गई and she left. Finalement j'ai mon premier autographe means finally I had my first autograph. Philip कहता है c'est formidable, tu as de la chance means it's wonderful, you are lucky. Je n'ai jamais rencontré mon actrice préférée means I have never met my favorite actress. Lewis कहता है et si c'est qui ton actrice préférée and who is your favorite actress? Audrey Tautou. So फिलिप की फेवरेट एक्ट्रेस है हमारी ऑड्रे ताउटू. यहाँ पर हमारा इंटेक्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है. नाउ लेट्स सी दी एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दी 3 or 4 मीन्स यू हैव टू से टेल वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स. So les étudiants n'aiment pas les contes means the children doesn't like these stories. So this is wrong. Elena a déjà des contes de Perrault means Elena has already read one of the story of Perrault. So this is true. Philip n'a rien lu means Philip has not read anything. So this is wrong. Louis est à l'heure means Louis is on time. So this is false. Louis a rencontré une actrice française means this it is true. नेक्स्ट हमारा यू हैव टू फाइंड द अपोजिट्स फ्रॉम द टेक्स्ट. तो ये वाले लेने हैं एंड इनमें से हमने टेक्स्ट में से चूज़ करना है आप लोगों को अपोजिट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फर्स्ट पार्ट किसके लिए प्रोफेसर प्रपोज द फेयर मीन्स व्हाट डज द प्रोफेसर प्रपोज टू डू. तो वो कहता है कि टू फाइंड आउट द बुक्स ऑफ Charles Perrault and borrow it from the bibliothecaire means from the librarian and read them at their respective houses. ठीक है. तो ये this is what the teacher proposes to do. कि ये Charles Perrault means who is Charles Perrault. So you have already read that he is a famous writer, is a famous French writer obviously. ठीक है. नेक्स्ट है नो में quelque conte de Perrault मीन्स नेम सम स्टोरीज ऑफ Perrault. सो यहाँ पर हमारे पास मेंशन कर रखी हैं सारी की सारी. सो इनमें से आप लोग कोई भी चूज़ करके लिख सकते हो. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नो में 10 एक्ट्रेस फ्रांसेस. तो एक तो वो थी जिससे हमारा लुइस मिलकर आया था विच इज़ मारियन कोटिलार्ड एंड एक है हमारी ऑड्रे टाउटू. ठीक है. ये दोनों आप लोग को लिखनी है. अब इंटेक्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. ग्रामर पार्ट पर आते हैं. सो एज़ यू ऑल नो पिछले से जो हमारा पिछला चैप्टर था मीन्स चैप्टर नंबर 5 उसके अंदर हमने पासे कॉम्पोजे स्टार्ट कर दिया था. वी डिस्कस द पासे कॉम्पोजे विद द अवॉर वर्ब. नाउ इट्स टर्न टू डू द पासे कॉम्पोजे with the ether verb. I'll provide you the link of chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 की लिंक I'll provide you in the comments. वहाँ पर जाकर पहले आप लोग चैप्टर 5 की वीडियो देखना क्योंकि उसके अंदर मैंने पासे कॉम्पोजे जो शुरू कराया है. इसके अंदर उसका सेकंड पार्ट है. तो स्टार्टिंग में तो बिगनिंग लेवल मैंने आप लोगों को करवाया था. यहाँ पर तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इस वजह से एक बार आप लोग चैप्टर नंबर 5 की ज़रूर जो है वो वीडियो देख लेना. नाउ लेट्स स्टार्ट बाय दिस. We have already done the passive composite in the previous chapter. In that chapter, we only concentrated on the verbs which use avoir as auxiliary. अब मैंने आप लोगों को बताया था previous chapter में कि avoir and être हमारी यूज़ होती हैं as auxiliary for forming the passive composite. ठीक है. अब बात करते हैं हमारी उन verbs की जो कि être verb लेती है as a auxiliary. सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा फॉर्मेशन का. द passive composite 17 verb is formed by combining the present tense of être and then adding the past participle of the verb showing the action. Most of these verb express motion or a change of place, state or condition. Means जितने भी हमारी verbs être verb लेती हैं ना in their passive composite as a auxiliary verb वो हमारी मोस्टली मोशन या फिर चेंज ऑफ प्लेस स्टेट और कंडीशन को जो है डिफाइन करती है. जैसे कि गोइंग अप, गोइंग डाउन, गोइंग इन, गोइंग आउट एट्सेट्रा. ठीक है. अब कुछ हमारी 17 वर्ब्स लिस्ट आउट कर रखी हैं जिनके साथ हमारा एथर वर्ब यूज़ होता है जो कि आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी. इसको रिमेंबर करने की ट्रिक है हमारी डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प. डॉक्टर मिसेस वेंडर एंड देन ट्रैम्प. ठीक है. सो डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प इज़ द एक्रोनियम टू लर्न द list of verbs which uses être as their auxiliary. ठीक है. सो D stands for revenir जिसका हमारा past participle होता है revenue. revenir R stands for revenir जिसका past participle होता है revenue.
एम स्टैंड्स फॉर मुरी जिसका पास्ट पार्टिसिपल होता है मोर। आर स्टैंड्स फॉर रितुरने जिसका पास्ट पार्टिसिपल होता है रितुरने। एस स्टैंड्स फॉर सोरती जिसका पास्ट पार्टिसिपल होता है सोरती। वी स्टैंड्स फॉर वेनियर जिसका पास्ट पार्टिसिपल होता है वेन्यू। ए अरीवे पास्ट पार्टिसिपल अरीवे। एन नेत्र पास्ट पार्टिसिपल ने। डी देसोंद्र पास्ट पार्टिसिपल देसोंद्यू। ई स्टैंड्स फॉर ऑन्ट्रे जिसका पास्ट पार्टिसिपल है ऑन्ट्रे। आर रोंथ्रे जिसका पास्ट पार्टिसिपल है रोम। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज जहाँ पर हमारा ट्रैम्प का दे रखा है। टी स्टैंड्स फॉर तोम्बे जिसका पास्ट पार्टिसिपल है तोम्बे। आर स्टैंड्स फॉर रेस्ते जिसका पास्ट पार्टिसिपल है रेस्ते। ए स्टैंड्स फॉर आले जिसका पास्ट पार्टिसिपल है आले। एम स्टैंड्स फॉर मोन्ते जिसका पास्ट पार्टिसिपल है मोन्ते। पी स्टैंड्स फॉर पार्टीर जिसका पास्ट पार्टिसिपल है पार्टी। एंड अगेन हमारा आता है पी विच स्टैंड्स फॉर पासे एंड जिसका पास्ट पार्टिसिपल होता है हमारा पासे। ठीक है, अब एक चीज़ हमने यहाँ पर क्या रखनी है, जैसे कि हमने अवुआर वर्ब का करा हमने पासे कॉम्पोजिट, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता था, बट वर्ब जो कि हमारी एत्र वर्ब लेती हैं पास्ट पार्टिसिपल के अंदर, उनका हमारा जेंडर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जो भी हमारा नाउन का जेंडर होगा उसी हिसाब से हमारी जो वर्ब होती है ना पास्ट पार्टिसिपल जिसका हम फॉर्म करते हैं, जैसे कि ये हमने देखी अभी पास्ट पार्टिसिपल, तो ये पास्ट पार्टिसिपल ना उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारा मैस्कुलिन है तो ये एज इट इज़ रहेगा, अगर मैस्कुलिन प्लूरल है तो एस ऐड हो जाएगा, अगर फेमिनिन है तो ई लग जाएगा, अगर फेमिनिन प्लूरल है तो ई एस लग जाएगा। तो ऐसे हमारा अकॉर्डेशन हमें करनी पड़ती है जब भी हम एत्र वर्ब का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ओरली समझ में आ गया होगा। अब इसको रीड आउट भी करते हैं। So verbs whose helping verb is एत्र must show agreement of the past participle in gender, ठीक है, and number, ये मैंने बता दिया, with the subject noun और pronoun as shown below। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ आले वर्ब जिसके साथ हमारा एत्र वर्ब यूज़ होती है। तो अगर मैं ज की बात करूँ, ज के साथ सबसे पहले मैंने एत्र वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया एंड देन मैंने आले वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया। अब अगर हमारा ज मीन्स आई जो है वो फेमिनिन है तो पीछे इसके क्या हो जाए ऐड हो जाएगा, ई ऐड हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर एस क्यों नहीं लिखा फिर हमने, क्योंकि ज इज़ अ सिंगुलर है वो, ठीक है, बस मैस्कुलिन फेमिनिन हो सकता है बट प्लूरल तो होगा नहीं, राइट। सो कॉमन सेंस के थ्रू ये पता लग गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आता है हमारा त्यू। त्यू हमारा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यू करके किसी से बात कर रही हूँ तो यू वो हमारा फेमिनिन भी हो सकता है और मैस्कुलिन भी हो सकता है, तो ई हमारा यहाँ पर लगेगा, ठीक है, अगर वो फेमिनिन हो तो। अब ऐसे करके करके आप लोग पूरा ये रीड आउट कर सकते हो, ये आले वर्ब का भी एंड वेनीर वर्ब का भी एग्जांपल। अब एक चीज़ आप लोगों को याद करनी है कि ये अकॉर्डेशन सिर्फ हमारा एत्र वर्ब के केस में होता है, ये हमारा अवुहार वर्ब जिसके साथ यूज़ होती है उसमें नहीं होता है, ठीक है। बस एत्र जिसके साथ यूज़ होगी उसी के जेंडर के हिसाब से, उसी के नाउन के जेंडर के हिसाब से हमारा पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। चलो ये सी पार्ट भी हो गया हमारा अकॉर्डेशन का। अब आते हैं डी पार्ट पर। और प्लूरल सब्जेक्ट फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, फॉर बोथ मैस्कुलिन फेमिनिन सब्जेक्ट, मतलब वो जो हमारा होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है फॉर बोथ मैस्कुलिन और फेमिनिन सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि सिंगुलर की अगर हम बात करते हैं, वो जेट ऑन थ्रे मीन्स यू एंटर्ड एंड वो रिमेन द सेम जेट ऑन थ्रे फॉर द प्लूरल, मतलब फेमिनिन फेमिनिन सिंगुलर एंड फेमिनिन प्लूरल दोनों के लिए क्या रहा, ये सेम रहा। सो वो हमारा ना दोनों के लिए होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है एंड प्लूरल के लिए भी होता है। वो हम सिंगुलर के लिए जब यूज़ करते हैं जब हम किसी फॉर्मल बंदे से बात कर रहे हैं, राइट, ये तो हमने कर रखा है, राइट। आई होप डी पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट कहता है फॉर अ मिक्स्ड ग्रुप ऑलवेज यूज़ द मैक्सिमम फॉर्म, मतलब अगर आप लोग सोचते हो, सोचो एक जगह पर कई सारे लड़के भी हैं, एक बहुत सारे लड़कियां भी एक साथ खड़ी हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हम एल सब्जेक्ट का यूज़ करें या इल सब्जेक्ट का यूज़ करें। तो अगर मिक्स ऐसा ग्रुप होता है ना तो हमेशा मैस्कुलिन फॉर्म आप लोगों को यूज़ करनी है। जैसे कि मैं कहती हूँ लुइस और एलेना, अगर मैं दो एग्जांपल लेती हूँ तो लुइस और एलेना दो लड़के, एक लड़का है और एक लड़की है, तो मैं क्या करूँगी, सो हमारा लगा हुआ मीन्स एथ्रो वर्ब लगी हुई है एंड मेरे को नाउन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो नाउन क्या है, मैस्कुलिन हम लेकर चलेंगे एंड दो प्लूरल है, प्लूरल की वजह से एस पीछे पुट कर देंगे, ठीक है। कमिंग टू द एफ पार्ट। एफ पार्ट हमारा कहता है फॉर्मिंग द नेगेटिव इन द पासे कॉम्पोजिट विद एत्र। अब हमारा पासे कॉम्पोजिट में जो जिसमें हम एत्र का यूज़ करते हैं उसका नेगेटिव कैसे फॉर्म होता है।
सो जो हमारा न होता है वो हमारा लगता है एत्र के आगे, एंड एत्र वर्ब के ख़त्म होने के बाद लगता है पा। तो ऐसे हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, एफ पार्ट तक समझ में आ गया। अब आते हैं जी पार्ट पर। क्वेश्चन इन द पास्ट से कॉम्पोजिट विथ एत्र, मतलब क्वेश्चंस कैसे हम फॉर्म करते हैं। सो टू फॉर्म द क्वेश्चन वी कैन यूज़ द इन्वर्जन मेथड, जिसके अंदर क्या होता है, वी इन्वर्ट द कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ एत्र वर्ब विद द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऐड एन हाइफन। ठीक है, द नेगेटिव सराउंड द हाइफनेटेड वर्ब एंड प्रोनाउन। अगर हमारा नाउन जो हमारा नाउन होता है एंड जो हमारी वर्ब होती है एत्र, उनके बीच में क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, एंड हम बीच में क्या, हाइफन को जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो ऐसे हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। एंड अगर हम बात करते हैं नेगेटिव, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तब क्या करेंगे, जो हमारा नेगेशन होता है, मतलब न और पा होता है, वो हमारा वर्ब और सब्जेक्ट को जो है सराउंड कर देती है कुछ इस तरह। ठीक है, कमिंग टू एच पार्ट। एच पार्ट कहता है फ्यू ऑफ द वर्ब्स ऑफ मोमेंट, जैसे कि मोनते, डिसोंड्रो, सोरती, पासे, रेतुकने, में समटाइम टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दस बिकमिंग ट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिटिव हम लोगों को पता है, ट्रांजिटिव वो वाली वर्ब होती हैं जिनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आई केम डाउन, आई केम डाउन, तो ये हमारा सिंपल है। ठीक है, केम के बाद सीधा हमारा क्या आ गया, डाउन आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं बाय लगा देती हूँ, आई केम डाउन बाय द स्टेयर्स, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इनट्रांजिटिव बन जाता है। मीन्स इसका ऑब्जेक्ट जो होता वो बन जाता है वो इनडायरेक्ट बन जाता है। तो जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, जिनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारी अवुआर वर्ब को यूज़ करती हैं। ठीक है, उनके साथ हमेशा अवुआर वर्ब यूज़ होती है इन द पासिव कॉम्पोजिट। एंड जो हमारी इनट्रांजिटिव होती हैं, कई वर्ब जो ये वाली वर्ब्स जब इनट्रांजिटिव बन जाती हैं तब ये क्या यूज़ करती हैं, एत्र वर्ब को यूज़ करती हैं। ठीक है, सो ये हमारा पूरा का पूरा है अबाउट दी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। इसको आप लोग रीड आउट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक्सरसाइज आप लोगों को ट्राई करने का सॉल्व करना है, एंड चैप्टर नंबर 5 की वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि पासे कॉम्पोजिट थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को आ जाए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड एक्सरसाइज में कोई डाउट होता है तो आस्क मी इन द कमेंट्स।